Let us start with your brand new chapter number 2. Yes, let us start with your chapter number 2, Business Etiquettes Part 2. Madam, Business Etiquettes Part 1 कहाँ गया? इसके पहले वाले वीडियोस देखिए बच्चों. इसके पहले वाले वीडियोस में we've completed part 1 as well. So in the last chapter, my dear students, try to understand. In the last chapter we tried teaching you all what are etiquettes. Etiquettes क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, एक करेक्ट मैनर ऑफ बिहेवियर क्या होता है. We tried making you all understand why is etiquettes, why was code of conduct important in certain kind of businesses. I mean in all kinds of businesses, but the code of conduct differs from one business to another business. In the same way, we tried explaining you how is it important in the 21st century, and we tried to show you the bigger perspective picture of why should one, as in why should you as an adult, as someone who's going to kickstart their career really fast. So here you all have to understand why were you supposed to follow and why were you supposed to learn the business etiquettes. In the same way, in this part 2 chapter, in this second chapter, now actually we will try teaching you all. Actually we will go through each and every side, as in each and every aspect of how will you follow your business etiquettes. Yes, my dear students, in the previous chapter, we tried understanding so many definitions. We tried understanding so many important aspects of why was etiquettes important in any business organization, be it that you are just an employee of that company or you are the owner of that company, be it your own business or be it somebody else's business. In every part, you have to have your business etiquettes in place, your rules, your code of conduct in place. Let us understand the first concept in the chapter number 2 is workplace etiquettes. Please give it a beautiful star mark. Let us talk about workplace etiquettes. How will we behave? How will we behave when we are at our workplace, that is when we are at the place of work. Say for example, you are working in a firm with only 5 people working with you. It is a small firm. Say for example, you are working with a mid-sized company with almost 100 people around you. Say for example, you are working with a public listed company with almost 1000 people around you. Say for example, you are working with a MNC, multinational corporation, with lakhs and lakhs of people working along with you. कोई भी प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, खुद का हो, किसी और का हो, कुछ भी हो, वो वर्क प्लेस में आप कौन सी और कैसे एटिकेट्स फॉलो करेंगे, ये हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं. प्लीज अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स. अच्छा, वर्क प्लेस एटिकेट्स एनकम्पासेस सेट ऑफ बिहेवियर. जब भी हम पढ़ रहे हैं, इट विल बी माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अपने हाथों में पेंसिल्स रखिए, सो दैट आप में एक हैबिट डेवलप हो जहाँ पे whenever you feel anything is important, you try underlining that concept. Please understand, workplace etiquette encompasses a set of behavioral guidelines. It is a set of behavioral guidelines. आप behave कैसे करेंगे, what type of and what kind of behavior will be considered the right behavior when you are at your workplace, and expectations that promote professionalism. आपसे expectation क्या होंगी जब आप काम करना शुरू करेंगे, आपसे एक्सपेक्टेशन क्या होंगी, सो दैट आप प्रोफेशनलिज्म एग्जिबिट करें. जी हाँ, रिस्पेक्ट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन. जी हाँ, आप रिस्पेक्टफुली एंड इफेक्टिवली कम्युनिकेट कैसे करेंगे अमंग कॉलीग्स, आपके कॉलीग्स के साथ, यानी कि आपके साथ जो काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ, एंड विद इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स. एब्सोल्युटली, it ensures a harmonious work environment where individual can collaborate. जी हाँ, individual can collaborate, can communicate and perform their roles effectively. Understand, in an office setting,
In an organizational setting, there is never that only one person is important. No, everyone is important. Once everyone is communicating effectively, everyone is working harmoniously, it is going to be the best performance for everyone, and everyone roles will be conducted effectively. Yes, my dear students, key aspect ऑफ वर्क प्लेस एटिकेट्स. अभी वर्क प्लेस एटिकेट्स तो क्या है समझ में आया, बट कौन सी ऐसी चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, कौन सी ऐसे पॉइंट्स है जिसको हमें बिल्कुल फॉलो करना है, सो दैट वी आर एट आवर बेस्ट बिहेवियर. प्लीज अंडरस्टैंड फर्स्ट कॉन्सेप्ट हियर माय डियर स्टूडेंट्स. Please understand the first point here, respectful communication. Yes, respectful communication. एक बात बताइए my dear students, एक एग्जाम्पल लेते हैं. इमेजिन कीजिए यू आर सिटिंग विद बंच ऑफ योर फ्रेंड्स. आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं और उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं. एंड वंस यू आर सिटिंग विथ योर रिलेटिव्स, योर पेरेंट्स और योर फैमिली. द वे यू कम्युनिकेट विथ योर फ्रेंड्स and the way you communicate with your parents, is that same? No ma'am, बिल्कुल भी. I'll be thrown out of my house. अगर मैं जैसे अपने दोस्तों के साथ बात करता हूँ वैसे मैं अपनी फैमिली के साथ बात करूँ. जी हाँ, most of us agree with this. The wherever and whenever you communicate, the person you are talking with, आप जिनके साथ बात कर रहे हैं उनके साथ आपको बात कैसे करनी चाहिए, सबसे पहले तो यू हैव टू फिगर दिस आउट. नाउ व्हेन यू आर एक्चुअली वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई आपके बॉस होंगे, काफ़ी सारे लोग आपके कॉलीग्स होंगे, काफ़ी सारे लोग आपके सीनियर्स होंगे, काफ़ी सारे लोग आपके जूनियर्स होंगे, काफ़ी सारे एक्वेंटेंसेस होंगे, आपके क्लाइंट्स होंगे, आपके सप्लायर्स होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हर व्यक्ति के साथ जब आप कम्युनिकेट करते हैं, हर व्यक्ति के साथ जब आप कम्युनिकेट करते हैं, आपको बहुत रिस्पेक्टफुली, यू हैव टू बी मोस्ट रिस्पेक्टफुल व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विथ एनीबडी. मतलब मैम ऐसा नीचे देख के बात करनी है, इधर उधर नहीं. You can look into the person's eyes, but you first of all you have to be confident there. जी हाँ, confident तो आपको लगना ही है, लेकिन इस चक्कर में आपको arrogant नहीं लगना है. You have to respect everybody, even when you are most angry. तभी भी आपको मोस्ट रिस्पेक्टफुल मैनर में ट्रीट करना है सामने वाले पर्सन को. द फर्स्ट पॉइंट हियर इज एक्टिव लिसनिंग. This quality, my dear students, might be underrated, but this quality is the best quality that you will ever find. मतलब मैम सामने वाला क्या बोलना चाहता है उसको सुनने की क्षमता आप में होनी ही चाहिए. एक्टिव लिसनिंग, लिसन टू द अदर पर्सन, वो क्या बोल रहा है या वो क्या बोल रही है. अगर हमारी गलती है तो हमको वो गलती दिखा रही है, शायद थोड़े गुस्से में हो, बट वो हमें सुनना है, हमें समझने की कोशिश करनी है और हमें करेक्टिव एक्शन. जब आपके बॉस आपको कुछ असाइनमेंट दे रहे हैं, जब आपके बॉस आपको कुछ सिखा रहे हैं, तभी आपको सही से सुनना है. यू हैव टू लिसन टू देम एक्टिवली सो दैट यू कैन परफॉर्म योर जॉब वेल. प्लीज अंडरस्टैंड, पे अटेंशन टू कॉलीग्स. जी हाँ, आप जिनके साथ काम करते हो उनकी बातों पे ध्यान दो. ड्यूरिंग मीटिंग्स, यस, मीटिंग के दौरान फोन में नहीं देखना है, फेज आउट नहीं होना है. एंड कॉन्वर्सेशंस, शोइंग इंटरेस्ट, जी हाँ, through verbal cues and maintaining eye contact. Yes sir, I follow. Yes ma'am, I understand. Yes ma'am, how to do this? Yes ma'am, I will get back to it. This is how you this is how you make the other person understand that yes, you are listening to them. Yes my dear students, polite language. Yes, whenever you are talking to anybody in your office or maybe somebody from outside of your office, say for example your suppliers, your customers, you have to be very polite. You cannot be rude to anybody in your workplace. Use courteous language including please, yes, thank you and excuse me in both verbal and written communication. मैम रिटर्न कम्युनिकेशन में हाउ कैन वन बी पोलाइट. अगर आप मेरे सामने खड़े हैं तो मैं आपके साथ पोलाइट बिहेव कर लूँगा या कर लूँगी,
लेकिन अगर मैं आपको ईमेल भेज रही हूँ तो मैं पोलाइट, जी हाँ, email may be even in emails or electronic, whatever manner it is, you can always show the other person that you are polite. Yes, my dear students. Constructive feedback. What is constructive feedback? Say for example, offer feedback constructively, focusing on behaviors or outcomes rather than personal attributes. Say for example, you come to me one day and you tell me, you know what ma'am, मुझे है ना आज इडली चटनी खाने का बहुत मन कर रहा है, इडली चटनी सांभर मुझे बना के दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, विल यू मेक इट फॉर मी? श्योर। मैं बोलती हूँ श्योर, मैं आपके लिए बना देती हूँ, ठीक है। मैंने चटनी बनाई, इडली बनाई, सांभर बनाया एंड आई ऑफर्ड इट टू यू। दिस इज अ वेरी सिली स्टूपिड एग्जाम्पल बट जस्ट इमेजिन, ओके, एंड आई ऑफर्ड इट टू यू। आप खाते हो, इतना मज़ा नहीं आया, मे बी नेक्स्ट टाइम, एंड यू लीव। से फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस में हो, आपके बॉस ने आपको बोला है एक प्रेजेंटेशन बनाओ, हमारे क्लाइंट्स 10 दिन में आने वाले हैं, उनको हमको ये गुड्स सेल करना है, ये प्राइस पे सेल करना है, और हमारे गुड्स की जो सप्लाई है या हमारे गुड्स की जो डिमांड है उस बारे में हमें कस्टमर को समझाना है सो दैट दे कैन बाय आवर गुड्स। ठीक है, इस बारे में सर ने आपको आपके बॉस ने आपको बोला है कि आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, आप प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हो एंड द डे बिफोर यू हैव टू प्रेजेंट इट, आपके बॉस आपको बोलते हैं एक डेमो कर दो मेरे सामने सो दैट यू डायरेक्टली डोंट मेक मिस्टेक्स इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट। आप बोलते हो ठीक है, अभी आपने उनको डेमो दिया, आपने प्रेजेंटेशन दिया, ही गेट्स अप इन द मिडल ऑफ द प्रेजेंटेशन, ही इज एंग्री एंड ही लीव्स। वो बोलता है वर्क ऑन इट हार्ड एंड ही लीव्स। अरे इफ़ यू आर गिविंग फीडबैक, अगर मेरे से कोई गलती हुआ है तो पॉइंट आउट दैट मिस्टेक, टेल मी हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ इफ आई हैव मेड एनी मिस्टेक्स इन एनी पार्ट ऑफ माई प्रेजेंटेशन, टेल मी व्हाट इज माई मिस्टेक। दैट माई डियर स्टूडेंट्स इज कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। अगर आप किसी को बोल रहे हो कि मुझे ये नहीं अच्छा लगा तो इसमें खामी क्या है, इसमें कमी क्या है, वो तो बताइए सामने वाले पर्सन को, तब जाके वो व्यक्ति उस पर काम करेगा, राइट। प्लीज अंडरस्टैंड। अच्छा, पर्सनल एट्रीब्यूट्स पे नहीं जाना है, पर्सनली किसी को नहीं बताना है, उनके बिहेवियर्स पे, उनके आउटकम्स पे फोकस कीजिए, ठीक है। अंडरस्टैंड प्रोफेशनल अपीयरेंस, जी हाँ बिल्कुल, अंडरस्टैंड प्रोफेशनल अपीयरेंस। आप कैसे ड्रेस करते हो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके ऑफिस, अभी आपको शायद इस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं आएगा, लेकिन ट्रस्ट मी, आप कैसे ड्रेस करते हो, आप कैसे खुद को कैरी करते हो, आपका जो प्रोफेशनल अपीयरेंस है, आप कैसे अपने हेयर को ब्रश करते हो, अपना, अगर आप यू आर अ मैन तो आप अपने बियर्ड, अपने मस्टैश को कैसे ग्रूम करते हो, हाउ डू यू इफ यू आर अ लेडी, हाउ डू यू वेयर एवरीथिंग that you are professionally, your appearance has to be the best. If you want to have your positive impression, if you want to get your work done, always dress in the best possible manner, my dear students. Now dress code, हर ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज वेयर एवर यू गो एंड वर्क, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक ड्रेस कोड होता है, वो ड्रेस कोड आपको फॉलो करना ही है। अगर आप वो ऑर्गेनाइजेशन के ड्रेस कोड फॉलो नहीं करते तो आज नहीं तो कल यू विल बी रिमूव्ड। अडयर टू द ऑर्गेनाइजेशनल ड्रेस कोड पॉलिसी, जी हाँ, अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो, अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो और आपको मना किया गया है ब्लैक कलर के कपड़े पहनने से, तो आपको ब्लैक नहीं पहनना है। अगर अच्छा, ड्रेसिंग अप्रोप्रिएटली फॉर योर रोल, आपका जॉब, आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपका पोजीशन क्या है, उस हिसाब से आपको ड्रेस करना है, राइट। एंड द नेचर ऑफ योर वर्क, अगर आप ऐसे जगह पे काम करते हो जहाँ धूल मिट्टी बहुत लगने की संभावना है आपके कपड़ों में, सो ऑब्वियसली वी विल अवॉइड वाइट्स देयर। अकॉर्डिंगली यू हैव टू चूज एंड व्हाट पोजीशन यू आर वर्किंग इन। इमेजिन अ CEO, imagine a CEO of a multi-crore rupees company and he is working in the office with some shorts. क्या वो सही लगेगा? He has to dress. अच्छा, these days I understand the casual wear policy in many offices. I understand and I agree also.
बट ऐसी भी कुछ समय होता है, ऐसा कुछ टाइम होता है जब आपको बहुत प्रोफेशनली ड्रेस करना है, एंड इट शुड बी देयर. आप जैसे ही प्रोफेशनली ड्रेस करोगे ऑटोमेटिकली यू विल शो द प्रोफेशनलिज्म इन यू. राइट माय डियर स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड द पर्सनल हाइजीन. अभी अच्छे कपड़े तो पहनने ही है, साफ सुथरे कपड़े तो पहनने ही है, आयरन्ड क्लोथ्स तो पहनने ही है, वॉश्ड क्लोथ्स तो पहनने ही है, उसी के साथ आपका पर्सनल हाइजीन भी आपको फॉलो करना है. जी हाँ, बिल्कुल. मेंटेन गुड पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स to uphold a professional appearance. जी हाँ, understand the next point here is punctuality. My dear students, please understand the term punctuality. मैडम punctuality मतलब अगर मुझे 11 बजे बुलाया गया है कहीं पे, अगर मुझे 11 बजे बुलाया गया है तो क्या मैं 9 बजे पहुंच जाऊँ? बच्चों, if you are needed to be somewhere at 11 a.m. the common practice is you reach by 10:30 or 10:45. This is a standard practice. You don't have to show up too early or you don't have to show up too late, right? You have to try to be on time. अभी सिर्फ मैम, मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे मतलब अगर हम टाइम की बात कर रहे हैं, पंक्चुअलिटी की बात कर रहे हैं, मतलब हमेशा पंक्चुअलिटी इज नॉट ओनली रीचिंग समवेयर, रीचिंग टू योर मीटिंग, रीचिंग टू ऑफिस ऑन टाइम, बट पंक्चुअलिटी ऑफ ऑल्सो टेल्स यू दैट इफ सम वर्क इज गिवन टू यू, अगर आपको कुछ काम दिया गया है तो वो काम, वो डेडलाइंस भी आपको फॉलो करनी है. अगर आप एक बार मिस्टेक करते हो तो शायद इट विल बी फोरसीन, I mean शायद it will be ignored, but अगर आप ये mistakes वापस I mean repeat करते हो तो definitely it will not create a good impression for you. See, अगर आप एक ट्रेनी हो, आप एक जूनियर हो, आपने नई करियर स्टार्ट किया है, आपने ऑफिस पहली बार आपने जॉब स्टार्ट किया है, तो आई कैन प्रिडिक्ट दैट यू विल मेक दीज मिस्टेक्स, आई कैन फोरसी इट, बट एट द सेम टाइम अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो मैं ऐसे मिस्टेक्स आपके पास से एक्सपेक्ट नहीं करती. प्लीज़ अंडरस्टैंड मीटिंग डेडलाइन. अगर आपके बॉस ने आपको कुछ काम ख़त्म करने के लिए बोला है, कुछ समय दिया है, कुछ वक्त दिया है, वो वक्त में, उतने टाइम में आपको अपना काम ख़त्म करना है. मीट प्रोजेक्ट डेडलाइंस एंड डिलीवरेबल्स ऑन टाइम. अगर आपने अपने सप्लायर को या आपने अपने कस्टमर को प्रॉमिस किया है कि आप इतने दिनों में इतना कंसाइनमेंट उनको भेजेंगे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि जो टाइम आपने उनको दिया है उतने टाइम में आप उनको वो कंसाइनमेंट भेज दो. और अगर बाय चांस नहीं भी भेजा आपने फॉर व्हाटसोएवर रीज़न, तो भी उसके लिए भी आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए और करेक्टिव एक्शंस आपको लेने चाहिए. ऑन टाइम डेमोन्स्ट्रेट रिलायबिलिटी. जी हाँ, आप पे लोग भरोसा कब करेंगे? जब आप अपने कमिटमेंट्स को फुलफिल करेंगे. एंड रिस्पेक्ट फॉर कॉलीग्स टाइम. अगर आपने अपने कॉलीग के साथ कुछ कर रहे हो तो उनका भी टाइम आपको रिस्पेक्ट करना है. आपके बॉस हो, आपके जूनियर्स हो, आपके कॉलीग्स हो, कोई भी हो, आपको उनका टाइम को भी रिस्पेक्ट करना है. अटेंडेंस. जी हाँ, अराइव पंचुअली फॉर मीटिंग्स. अगर आपको पहले से ही पता है कि मीटिंग का टाइम क्या होने वाला है, अगर आपको पता है मीटिंग का टाइम क्या होने वाला है, प्लीज़ बी ऑन टाइम. अपॉइंटमेंट्स. जी हाँ, अगर आपकी अपॉइंटमेंट्स, आपकी किसी ने अपॉइंटमेंट ली है, आपने किसी की अपॉइंटमेंट ली है, बोथ वेज ऑलवेज बी ऑन टाइम. एंड वर्क शिफ्ट. जी हाँ, अगर ऑफिस का टाइम है 9:30 to 6:30, आप आते 10 बजे हो, आप निकलते 5 बजे हो, इज दिस ओके? Once or twice maybe it is okay, but all the time you cannot do that. Understand? Notifying colleagues in advance if delay are unavoidable. जी हाँ, अगर आप बाय चांस लेट होने भी वाले हो, मीटिंग्स हो, कॉन्फ्रेंसेस हो, अपॉइंटमेंट्स हो या कुछ भी हो,
अगर आप लेट होने भी वाले हो एंड इट इज़ अनअवॉइडेबल तो ऑलवेज इन्फॉर्म या नोटिफाई योर कॉलीग्स इन एडवांस. प्लीज़ अंडरस्टैंड रिस्पेक्ट फॉर वर्क प्लेस एंड रिसोर्सेज. अच्छा, इसका मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. रिस्पेक्ट फॉर वर्क स्पेस एंड रिसोर्सेज. कितने, आपको शायद सुनने पे विश्वास ना आए, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो ऑफिस के रिसोर्सेस का बहुत गलत फ़ायदा उठाते हैं. मैडम एग्जाम्पल दो. एग्जाम्पल देती हूँ. लॉकडाउन आया था आज से 4 साल पहले, 3-4 साल पहले की बात है. लॉकडाउन, प्रॉपर कोविड-19 लॉकडाउन आया था. तभी सिंस इट वॉज वर्क फ्रॉम होम फॉर ऑलमोस्ट एवरीबडी, हम सब घर से काम कर रहे थे. एक ऑफिस में, नाम नहीं दूंगी, एक ऑफिस में से सारे एम्प्लॉयज़ को घर पे लैपटॉप दिए गए पर्सनल, सिंस कंप्यूटर्स ऑफिस में थे, लेकिन सिंस दे विल नॉट बी एबल टू ट्रैवल टू द ऑफिस एवरी डे, सबको लैपटॉप्स दिए गए घर तक. घर पे सबके लैपटॉप पहुंचा दिए गए. आज उस टाइम से 6 महीने के अंदर अंदर पता चला कि कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने वो लैपटॉप जो प्योरली ऑफिस पर्पसेस के लिए दिया गया था, वो लैपटॉप का इस्तेमाल करके उन्होंने खुद का पर्सनल बिजनेस रन किया है इन्हीं लैपटॉप्स पे. या और एक एग्जांपल देती हूँ. स्टेशनरी, आपके ऑफिस में बहुत सारी स्टेशनरी सप्लाई होती है. जी हाँ, पेन, पेपर्स एक्सेट्रा, इनके बिना कैसे चलेगा. तो ये स्टेशनरी में से पता चला, एवरी डे देख रहे थे, एनुअल रिपोर्ट बन रहा था या जो भी था वो बन रहा था, तो पता चला कि ये साल स्टेशनरी का यूज़ 3 टाइम्स बढ़ गया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में. जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जो स्टेशनरी स्टील करके अपने घर पे, यानी कि स्टेशनरी की चोरी करके अपने घर में सप्लाई करते थे. माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ग्रोस, दिस इज़ नॉट गुड. यू कैन नॉट डू दिस. आप किसी और के रिसोर्सेज को इस्तेमाल अपने फ़ायदों के लिए ऐसे नहीं, वो रिसोर्सेज सिर्फ आपके लिए दिए गए हैं, आप ऐसे पर्सनल यूज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते. प्लीज़ अंडरस्टैंड रिस्पेक्ट फॉर वर्क स्पेस एंड रिसोर्सेज. जी हाँ, यू हैव टू कीप योर ऑफिस क्लीन. ये आपका ऑफिस है. आप, यानी कि आपके साथ काम करने वाले सारे लोगों को ऑफिस की चीज़ें, ऑफिस का प्रीमाइसेस क्लीन रखना है. कीप योर ऑफिस स्पेस टाइडी एंड ऑर्गेनाइज, रिस्पेक्टिंग द शेयर्स, बिकॉज ये सिर्फ आपका नहीं है, आप ये स्पेस शेयर करते हो. शेयर्ड स्पेसेस एंड अमेजिंग क्लटर, मिनिमाइजिंग, आई एम सो सॉरी, एंड मिनिमाइजिंग द क्लटर. आप ऐसे सब चीज़ों को जमा नहीं कर सकते. यू हैव टू कीप योर डेस्क, यू हैव टू कीप योर ऑफिस द स्पेस क्लीन. जमा करके सब चीज़ें एक साथ नहीं रखनी. यू हैव टू अनक्लटर, डीक्लटर. यस, I'm so sorry about this, my dear students. Minimizing clutter. Resources use. Now use office equipments. जी हाँ, आप ऑफिस की चीज़ें, ऑफिस का सप्लाईज एंड फैसिलिटीज़ रिस्पॉन्सिबली. आपको वेस्ट नहीं करना जस्ट बिकॉज आपको मिल रहा है, जस्ट बिकॉज आपका पैसा उसमें नहीं लगा, लेकिन है तो वो किसी का तो पैसा लगा है ना. You have to use it responsibly, considering their shared nature and cost of implication. Of course, nothing is for free of cost, right? Understand teamwork, my dear students. Understand teamwork and collaboration. कोऑपरेशन की बात करें तो जब भी आप काम करते हो ऑफिस में, ऑफ कोर्स कोई भी ऑफिस में एक अकेला व्यक्ति तो काम नहीं कर सकता, राइट. तो जब भी आप काम करते हो, आपके साथ काम करने वाले लोग आर योर टीम मेंबर्स. सो ऑलवेज कोलैबोरेट एंड कोऑपरेट विथ देम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, राइट. कोलैबोरेट इफेक्टिवली विथ योर कॉलीग्स, रिस्पेक्टिंग देयर एक्सपर्टीज. अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है जिसमें वो एक्सपर्ट है, ट्राई टू लिसन टू देम. जस्ट बिकॉज वो आपका जूनियर है, ज़रूरी नहीं कि आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, नहीं, आपको सबको रिस्पेक्ट करना है. एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू अचीव शेयर्ड गोल्स. जी हाँ, मैंने बोला
कोई भी ऑफिस में जब सक्सेस आता है तब वो एक व्यक्ति की वजह से नहीं आता है, वो टीम की वजह से आता है। जी हाँ। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जब कभी भी आपके ऑफिस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो, झगड़े हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, ऑलवेज ट्राई टू रिजॉल्व, यानी कि उसे सॉल्व कीजिए। Addressing conflicts professionally, seeking resolutions through open communication and mediation when necessary. Understand email and digital communication. Please understand email and digital communication. प्रोफेशनल टोन, अभी द बिजनेसेस दीज डेज माय डियर स्टूडेंट्स, दे रन ऑन ईमेल्स, लाइक ईमेल्स आर सो इम्पॉर्टेंट दीज डेज। आई मीन ईमेल के बिना आपका कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता है। तो ये ईमेल में आपको कैसे मेल ड्राफ्ट करना है, आपका प्रोफेशनल टोन कैसा होगा वहाँ पे, ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। यूज़ अ प्रोफेशनल एंड रिस्पेक्टफुल टोन। कभी आपका ईमेल चेक कीजिए, आपका इनबॉक्स चेक कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। जब भी आपको कोई मेल आता है, दे स्टार्ट बाय राइटिंग डियर सो एंड सो, आई होप यू दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, रिस्पेक्टफुली रिगार्ड्स। कितने ब्यूटिफुली वो आपको ड्राफ्ट करके देते, सो दैट इवन यू फील गुड व्हेन यू आर रीडिंग द ईमेल्स, राइट। इन ईमेल्स अवॉइडिंग एब्रीविएशन ASAP, एज सून एज पॉसिबल, ऐसी चीज़ें ईमेल में नहीं लिखनी है। LOL, लाफ आउट लाउडली, ऐसी चीज़ें ईमेल में नहीं लिखनी है। और इनफॉर्मल लैंग्वेज अनलेस अप्रोप्रिएट। ओके, अंडरस्टैंड क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस। आपको बड़े बड़े मैसेजेस ड्राफ्ट नहीं करने हैं। कीप योर मैसेजेस शॉर्ट, कंसाइज, एज मच एज नीडेड. Please understand communicate messages clearly and concisely, ensuring recipient understand your intention and expectation. Meeting etiquettes, आप जब मीटिंग में हो तब आप क्या करेंगे, प्रिपेयर्डनेस। जी हाँ, जो भी मीटिंग आप अटेंड कर रहे हो, आप वो मीटिंग के बारे में आपको प्रिपेयर्ड रहना ही है। प्रिपेयर फॉर मीटिंग्स बाय रिव्यूइंग एजेंडाज। जी हाँ, किस बारे में डिस्कशन होने वाली है और मीटिंग की एजेंडा क्या है। गैदरिंग द नेसेसरी मटेरियल्स। जी हाँ, आपको फैक्ट्स पेश करने हैं। एंड कंट्रीब्यूटिंग कंस्ट्रक्टिवली टू डिस्कशन, सिर्फ सुनना नहीं है या सिर्फ हाँ 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 नहीं बोलना है, आप क्या बोल रहे हो आप कंट्रीब्यूट करो डिस्कशन में वेरी कंस्ट्रक्टिवली. अंडरस्टैंड द एंगेजमेंट. एक्टिवली पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स. लिसन टू अदर्स व्यू पॉइंट्स. जी हाँ, पहले तो सुनिए लोग क्या बोल रहे हैं. एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस. आपको फोन्स आपको यूज नहीं करना है, सच एज यूजिंग फोन और लैपटॉप्स फॉर अनरिलेटेड टास्क. अगर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है और आप बैठ के इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हो, इज दिस एक्सेप्टेबल? एब्सोल्युटली नॉट माय डियर स्टूडेंट्स. प्लीज अंडरस्टैंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड कल्चरल सेंसिटिविटी. आपके ऑफिस में काम करने वाले लोग ज़रूरी नहीं है कि सब सेम कल्चर फॉलो करे, सबके लिए आपको रिस्पेक्ट करनी है. रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड कल्चरल सेंसिटिविटी. Respect and value diverse perspectives, customs and backgrounds, fostering an inclusive workplace culture, avoiding biases. आपको किसी की तरफ bias नहीं होना है. Understand, avoid discrimination, avoid complete discriminatory language or behavior. नहीं, ये मेरे रिलीजन का नहीं है, मैं इसके साथ बात नहीं करूँगा. नहीं, ऐसा नहीं चलता है. Since you all are working in the same office, you all are same. And promoting equality and fairness in all interactions. Please understand confidentiality and integrity. अगर आपने किसी को confidential information दी है, आपको किसी न किसी का सीक्रेट या ऑफिस का ही कुछ ऐसा सीक्रेसी है, वो आपको मेंटेन करना है. अंडरस्टैंड डेटा सिक्योरिटी. नाउ सिंस इट इज़ ऑल ऑनलाइन डेटा का बहुत टेंशन रहता है, सो एवरीवन इन द ऑफिस शुड मेंटेन इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोटेक्ट sensitive information, adhering to organizational policy and legal requirement. अगर आपका बॉस आपको ईमेल पे कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, आप ये इन्फॉर्मेशन किसी को लीक नहीं कर सकते. यू हैव टू बी लॉयल. अंडरस्टैंड द ऑनेस्टी. झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना है. डेमोन्स्ट्रेट इंटेग्रिटी इन ऑल डीलिंग्स. जी हाँ, आप जो भी डील कर रहे हो,
इंक्लूडिंग रिपोर्टिंग एरर्स, अगर सच्ची में किसी से गलती हुई है, अगर सच्ची में किसी से गलती हुई तो यू हैव टू रिपोर्ट एरर्स और एथिकल कंसर्न्स प्रॉम्प्टली एंड रिस्पॉन्सिबली। सच्ची में कुछ गड़बड़ हो गई है तो प्लीज़ रिपोर्ट करिए। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कंटिन्यूस लर्निंग, जस्ट बिकॉज आपका अकेडमिक क्वालिफिकेशन ख़त्म हो गया है ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई आप आगे कुछ नहीं सीखोगे। सी बच्चों, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितना आगे बढ़ रहा है, एवरी सिंगल डे देर इज समथिंग न्यू टू लर्न। Try to be open when it comes to learning new skills. Continuous learning. Pursue professional development opportunities to enhance skills and knowledge relevant to your role. आप जो भी रोल आपका है ऑर्गेनाइजेशन में, वो रोल के हिसाब से जो भी आपको स्किल्स दिखानी है और जो स्किल्स आप में होनी चाहिए उसको एवरी टाइम अपग्रेड करिए। अंडरस्टैंड मेंटरिंग, मेंटर एंड सपोर्ट कॉलीग्स। आपके कॉलीग्स अगर कुछ नहीं जानते हैं तो उनको सिखाइए, उनको सपोर्ट कीजिए। कैन शेयर एक्सपर्टीज एंड फॉस्टरिंग अ कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ओके माय डियर लर्नर्स, this brings us to the end of this lecture.